طلبا کبھی اپنے ملک کے خلاف کام نہ کریں، جلاؤ گھراؤ کے بہکاوے میں کبھی نہ آئیں، طلبا کبھی کسی کا ایندھن مت بنیں۔ یہ بات اچھی ہوتی تو کبھی معافی مانگ کر جیلوں سے باہر نہ آتے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بہاؤدین ذکری یونیورسٹی ملتان میں ہونہار اسکالرشپ پروگرام کی تقریب سے خطاب۔ 30,000 اسکالرشپ 100% میرٹ پر دیے ہیں۔ کسی سے نہیں پوچھا کہ کس سیاسی جماعت سے تعلق ہے۔ انٹرنیشنل اسکالرشپ پروگرام بھی جلد شروع کریں گے۔ 30,000 الیکٹرک بائکس دے رہے ہیں۔ پہلا فیز مکمل ہو گیا۔ مریم نواز کا اگلے سال 1 لاکھ کی بائکس مفت دینے کا اعلان۔ جلد طلباء کو لیپ ٹاپ بھی دیں گے۔ والدین کا بوجھ بانٹنے کے لیے پنجاب حکومت ہر ممکن سہولت فراہم کرے گی۔ مریم نواز نے ہونہار طالب علموں میں وظائف بھی تقسیم کیے۔ 80 ٹرکوں پر مشتمل قافلے کی 8 کرم روان کی متوقع۔ زرعی انتظامیہ کا کہنا ہے کرم روڈ کلیئر ہوتے ہی اشیاء فروخت کا قافلہ روانہ کر دیا جائے گا۔ مین شاہراہ پر صبح 6 سے شام 6 بجے تک کرفیو نافذ رہے گا۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کہتے ہیں امن معاہدہ برقرار ہے، تمام شکوں پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا، علاقے کو اسلحے سے پاک کیا جائے گا، اسلحہ رکھنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر پر حملہ کرنے والوں کو جلد قانون کے شکنجے میں لائیں گے۔ دوسری جانب گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کی CMH پشاور آمد، فائرنگ سے زخمی ہونے والے سابق ڈپٹی کمشنر کی عیادت کی۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ ایک بار پھر مؤخر۔ فیصلہ سنانے کے لیے 13 جنوری کی نئی تاریخ مقرر۔ احتساب عدالت کے عملے نے نیب اور بانی PTI کے وکلاء کو آگاہ کر دیا۔ احتساب عدالت نے آج فیصلے کی تاریخ مقرر کر رکھی تھی۔ جج ناصر جاوید رانا کی رخصت کے باعث فیصلہ نہ سنایا جا سکا، سماعت ملتوی۔ دوسری جانب GHQ حملہ اور 9 مئی کے 13 کیسز کی سماعت 8 جنوری تک ملتوی۔ تمام ملزمان کو آج کے لیے حاضری سے استثناء دے دیا گیا۔ دوسری جانب توشہ خانہ 2 کیس کی اڈیالہ جیل میں سماعت، بشرا بی بی عدالت میں موجود۔ بانی PTI سے مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات بھی متوقع۔ مذاکرات کسی ڈیل کے لیے نہیں کر رہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس تو بریت کا ہے۔ حکومت نہ جانے کون سا ڈرامہ کر رہی ہے۔ اس کیس میں سزا ہو بھی جائے تو ہائی کورٹ میں کیس اٹھ جائے گا۔ رہنما PTI شوکت یوسف سے کہتے ہیں ہمارے مطالبات واضح ہیں، لکھ کر دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مذاکراتی کمیٹی کو اب تک بانی سے ملنے نہیں دیا گیا۔ بانی سے ملاقات ہونے تک حکومت کو کوئی مطالبات نہیں دے سکتے۔ مذاکرات جاری رکھنے کا فیصلہ حکومتی نمائندوں کی سنجیدگی کو دیکھ کر کریں گے۔ عمران نیازی صاحب لوگوں سے رسیدیں مانگتے تھے، وہ سب کو کہتے تھے رسیدیں دکھاؤ۔ جب ان سے کہا گیا کہ اپنی رسیدیں دکھاؤ تو ان کی رسیدیں بوگس نکلیں۔ وہ کسی دکاندار کی ایسی رسیدیں تھیں جس کی دکان ہی نہیں تھی اور بوگس رسیدیں تھیں۔ تو اگر وہ اصلی رسیدیں دکھا دیں گے تو وہ رہا ہو جائیں گے۔ ملک کا اگر 50 ارب روپیہ آپ کھا جائیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے ڈکار بھی نہیں مارنا اور مجھے کوئی پوچھے بھی نہ، تو یہ کسی ملک کے اندر ہو سکتا ہے؟ بانی PTI اصل رسیدیں دکھائیں تو رہا ہو جائیں گے۔ بانی PTI نے ملکی خزانے کو اپنا پیسہ سمجھا۔ ملک کے 50 ارب روپے کھا جائیں اور ان سے کوئی پوچھے بھی نہیں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی کراچی میں صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کے ہمراہ نیوز کانفرنس۔ کہا اڑان پاکستان پروگرام کسی کو اختلاف نہیں، KP کو بھی اڑان پاکستان پروگرام پر اعتماد میں لیا۔ ملک محاذ ذرائع کا متحمل نہیں ہو سکتا، چیلنجز سے نمٹنے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ غیر قانونی اسلحہ اور شراب برآمدگی کا کیس علی امین گنڈاپور کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی مسلسل عدم پیشی پر عدالت برہم۔ ملزم پیش ہوا نہ وکیل نہ ہی تفتیشی آفیسر حاضر ہوا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ اسلام آباد نے سماعت 21 جنوری تک ملتوی کر دی۔ شاہ فیصل کالونی میں گٹر کے ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے ایک ننھا منا بچہ اپنی جان گنوا بیٹھا۔ ہزارہ ارب روپے کا بجٹ کنزیوم کر چکے ہیں اور ہم ابھی تک اس شہر میں گٹر کے ڈھکن لگانے کے بھی قابل نہیں ہوئے۔ بھائی مان لیتے کل اس کی فیملی کے پاس چلے جاتے۔ 2023 کی میں اگر میں سٹیٹس پیش کروں، میرے سٹیٹس نہیں ہے، ریسکیو اداروں کے سٹیٹس سے 60 سے زائد ہم بات ہو چکی ہے اسی طرح گٹر مین ہول اور ندی میں گرنے کی وجہ سے۔
मैन होल का ढक्कन ना होने से बच्चा जान से चला गया, क्या सिंध हुकूमत और मेयर सो रहे हैं? ओपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी कहते हैं सिंध हुकूमत बच्चे के घर जाकर मुआफ़ी मांगे। बच्चे की हलाकत पर कोई सियासत नहीं हो रही, सिंध हुकूमत सियासत कर रही है। पाकिस्तान को सीरीज की शिकस्त से बचने का चैलेंज दरपेश। केप टाउन टेस्ट का चौथा रोज, पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स में बैटिंग जारी। 3 विकेटों के नुकसान पर 280 रन बना लिए। कप्तान शान मसूद की जिम्मेदाराना बैटिंग। 117 रन के साथ क्रीज पर मौजूद खुरम शहजाद 18, कामरान गुलाम 28 रन बनाकर आउट। 141 रन का खसारा अब भी बाकी। फॉल ऑन का शिकार पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 194 रन बनाकर आउट हुई। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर का इफ्तिताह 27 जनवरी को होगा। चेयरमैन PCB ने क्रिकेट शायकीन को खुशखबरी सुना दी। मीडिया से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में तामीराती और फिनिशिंग का काम 25 जनवरी तक मुकम्मल हो जाएगा। कहा साइम अयूब असासा है, इलाज के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। चेयरमैन PCB का क़ज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा, अपग्रेडेशन मंसूबे पर काम का जायजा लिया। क्रिकेट में एक बार फिर बिग 3 पर मुश्तमिल मंसूबा बनाने पर गौर। ऑस्ट्रेलियन मीडिया के मुताबिक ICC के भारतीय सरबराह जय शाह नई तजवीज़ के लिए मुतहर्रिक हो गए। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और भारत के दरमियान टेस्ट मैचेस की तादाद बढ़ाई जाएगी। ICC सरबराह जय शाह का इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडियन बोर्ड के सरबराहान से रब्ता। जय शाह, रिचर्ड थॉम्सन और बियट में इसी माह मुलाकात होगी। भारतीय कमेंटेटर रवि शास्त्री का कहना है टेस्ट मैचेस बेस्ट बामुकाबला बेस्ट होने चाहिए। 2016 में भी ऐसी तजवीज़ सामने आई थी। कराची से खैबर तक खून जमा देने वाली ठंड, बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। वादी लीपा के पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। चित्राल में 15, अस्तौर में 3, कालाम में 2 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड। ज़ियारत में पारा -11 तक गिर गया। कल्लात -9, कोयटा -8, गोपस में -6 और पारा चिनार में -4 रिकॉर्ड। नारायण चौगरान सिरिपाई में 4 इंच से ज़ायद बर्फबारी। एबटाबाद, गलियात, ठंडियानी में हल्की बर्फबारी का सिलसिला शुरू। दूसरी जानिब लाहौर समेत पंजाब में शदीद धुंध, मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद, कई खुल गए। कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक का निज़ाम मुतासिर। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सूबे हफ्राबातन के साबिक़ गवर्नर सऊदी शहजादा मंसूर की मुलाकात। वज़ीर आला के इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत, तालीम और मजहबी सियाहत के शोबों में सऊदी सरमायाकारी की दावत। मरियम नवाज ने कहा पंजाब हुकूमत ने कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने के लिए सिक्योरिटी और मेरिट को यकीनी बनाया है। सऊदी सरमायाकारों को स्पेशल पैकेज के तहत मराद दी जाएंगी। शहजादा मंसूर ने कहा सऊदी अरब हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। साबिक डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली रूलिंग के साइनी बेंच ने साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही को नोटिस जारी कर दिया। हमजा शहबाज ने फैसला नज़र सानी में चैलेंज किया था। दूसरी जानिब कच्ची आबादी केस में वफाकी हुकूमत से 2 हफ्तों में पॉलिसी रिपोर्ट तलब। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कच्ची आबादी को रेगुलेट करने का इख्तियार सूबों और लोकल गवर्नमेंट का है। जस्टिस जमाल मुंदखिल ने कहा पहले तो ये बताया जाए कि कच्ची आबादी क्या होती है। बलूचिस्तान में तो सारे घर कच्चे हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा तजावुजात की तामीर में इदारे भी और लोग भी मुलव्वस होते हैं। सबसे पहले छप्पर होटल बनता है, फिर वहाँ आहिस्ता आहिस्ता आबादी बन जाती है। बलूचिस्तान के हल्का PB 45 इलेक्शन नताइज के खिलाफ JUI सरापा एहतजाज। कोयटा शहर में जुज़वी हड़ताल, कुछ मार्केटें बंद, कुछ खुली हैं। नौश की खुजदार हब में मुकम्मल शटर डाउन। किला सैफुल्ला में 2 घंटे पहिया जाम हड़ताल की गई। दूसरी जानिब कोयटा में सिक्योरिटी वजूहात पर 2 रोज़ के लिए मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद। महकमे दाखिला के मुताबिक सर्विस कल रात 12 बजे बहाल कर दी जाएगी। नादरा मेगा सेंटर्स में 24 घंटे पासपोर्ट काउंटर्स कायम करने का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के अहकामात पर अमल दरामद शुरू। कराची, नाजिमाबाद और सिमचोरंकी साइट में 10 पासपोर्ट काउंटर्स कायम। पासपोर्ट प्रोसेसिंग काउंटर से शहरी 24 घंटे मुस्तफिद होंगे।
लेस्को में ओवर बिलिंग इंक्वायरी का तनाज़ा आखिरी मराहिल में दाखिल। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को, CSD और डायरेक्टर कमर्शियल इब्तदाई इंक्वायरी में जिम्मेदार करार। नैब ज़राए के मुताबिक नैब लाहौर ने तहकीकात मुकम्मल कर ली। रिपोर्ट चेयरमैन नैब को पेश की जाएगी। लेस्को ने सार्फिन को गुज़श्ता साल करोड़ों रुपए के इजाफी बिल डाले। मुल्क में आइन के मनाफी इक़दाम हो रहे हैं। जमहूरियत कमज़ोर और आज़ादी इज़हार राय पर एक किस्म की पाबंदी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नेमुर रहमान कहते हैं जुल्म और जबर का सिस्टम राइज, लोगों को इंसाफ तक नहीं मिलता। गरीब, काश्तकार और मजदूर को मुल्क में कोई पूछने वाला नहीं। चिकन की उड़ान जारी, मुर्गी के गोश्त के निर्ख मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। रावलपिंडी में कीमत 900 रुपए किलो तक पहुंच गई। जिंदा मुर्गी 500 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। लाहौर में भी चिकन की कीमत 700 रुपए किलो तक पहुंच गई। पेशावर में जिंदा मुर्गी की कीमत में 485 रुपए हो गई। पंजाब में सरकारी ज़मीनों पर काबिज माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का हुक्म। महकमा जंगलात की पुलिस के हमरा तहसील खानपुर में बड़ी कार्रवाई। 90 एकड़ अराजी वागुजार करा ली। कब्जा माफिया का महकमा जंगलात की टीम पर हमला, नकदी और मोबाइल फ़ोन छीन लिए। सरकारी गाड़ी जलाने की भी कोशिश। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, गिरफ्तारी के लिए छापे। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं सरकारी ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत का फ़र्ज़ है। महकमा जंगलात की तमाम ज़मीनें वापस लेंगे। पंजाब के चिड़ियाघरों में मौसमी शिद्दत से बचाव के खुसूसी इंतजामात। वाइल्ड लाइफ पार्क्स और चिड़ियाघरों में जानवरों के पिंजरों में हीटर लगा दिए गए। जानवरों के आराम के लिए खुसूसी जगह बना दी गई। खुराक में गुड़ और चने शामिल कर दिए गए। जबरी गुमशुदगियों का इल्ज़ाम। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद के दूसरी बार वारंट गिरफ्तारी जारी। खबर एजेंसी के मुताबिक साबिक बांग्लादेशी हुकूमत के 11 एहलकारों के वारंट भी जारी। हसीना वाजिद के खिलाफ इंसानियत मुखालिफ जराइम के इल्ज़ामात पर वारंट गिरफ्तारी जारी किए जा चुके। गजा जंगबंदी मुज़ाकरात में अहम पेशरफ। हमास 34 यरगमालियों की रिहाई के लिए तैयार। इसराइल की जानिब से पेश करदा फहरिस्त की मंजूरी दे दी। कहा किसी भी मुआहिदे का इन्हिसार इस्राइली फौजियों के इनखला और जंगबंदी पर होगा। मुज़ाकरात के बावजूद इसराइल के गजा में सफ़ाकाना हमले जारी। रफ़ा, नसीरात और जबालिया कैंपों में मकानात पर बमबारी। 17 फ़लस्तीनी शहीद। शिमाली शाम में तुर्क धड़ों और शामी फोर्सेस में झड़पें। मज़ीद 100 अफराद मारे गए। मरने वालों में 50 SDF के एहलकार शामिल। झड़पें शाम की नई सियासी इंतजामिया और SDF में मुज़ाकरात के बावजूद जारी। और हैप्पी बर्थडे महविश हयात। खूबरू अदाकारा और मॉडल महविश हयात की 37वीं सालगिरह। TV ड्रामों के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री में भी खूब नाम कमाया। सदारती तमगा इम्तियाज से भी नवाजा जा चुका।